ठीक है, ओके. So what we have studied earlier, we have seen that equation of pair of tangents from a given point to a conic. Pair of tangents from a given point. From a given point dash y dash to a conic is equal to 0. ये हम लोगों ने देखा था कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इक्वेशन क्या होगा, टू अ कोनिक इज इक्वल टू 0. Again, that conic in the sense I am referring this standard equation ax square plus 2hxy plus किसी पॉइंट से किसी कोनिक पे किसी कोनिक पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ. From here we are drawing tangent to conic. Combined equation of pair of tangent. Combined equation of pair of tangent is given by s is equal to t square. S is equal to say t square. हमने बता दिया था s क्या एक्सप्रेशन कोनिक का, s1 कैसे लिखते हैं और s डैश कैसे लिखते हैं. इस कोनिक के इक्वेशन में x को x डैश से रिप्लेस कर देते हैं और y को y डैश. और टेंजेंट का इक्वेशन मैं बता चुका हूँ. टेंजेंट में x स्क्वायर को x x1 से, y स्क्वायर को y y1 से, xy को xy1 प्लस y x1/2 से, और x को x1/2 और y को y प्लस y1/2. तो ये हम लोगों ने आर्टिकल कर लिया था. अब इस पे बेस्ड एक एग्जांपल सॉल्व्ड एग्जांपल है, मैं इसको जरा डिस्कस कर दूं. नंबर 71. Question is find the angle between the pair of tangents. Let me write question. Please mute your mic. Find the angle between pair of tangents. Arjun, please mute your mic. Find the angle between the pair of tangents drawn from x dash y dash to the ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to 1. Hence find the locus of the vertices of equilateral triangle circumscribing the ellipse. देखिए पहले इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है. Find the angle between the pair of tangents from x dash y dash to this ellipse. So suppose we have this ellipse, and from this point P, whose coordinates are say x dash y dash, I am drawing this. Okay. Suppose this PT and PT dash represents, I mean this line, these two lines are pair of tangents drawn from this point x dash y dash to this conic say ellipse as per your question. Then we need to first obtain the equation of this pair of tangents, and in the second part it is written that find the locus of the vertices of equilateral triangle circumscribing the ellipse.
find the locus, and in second case, see, equilateral triangle, if these two sides are parts of the equilateral triangle, then the angle here must be 60 degree. Suppose this one, so suppose these two are sides of equilateral triangle which circumscribes this ellipse. So I need to find locus of all subpoint. What we mean by locus? Locus is basically a path traced by a point. So there may be this point P may be here, such that again, if you again draw say pair of tangent from this point, again it is going to have angle 60 degree here, and it is going to circumscribe this ellipse. So the path on which this point P is moving, such that whenever you draw pair of tangents to this ellipse, they are those two pair of tangents will be a part of the equilateral triangle. So I need to find the locus of such point. So the general criteria is that, suppose to find the locus of point x dash y dash, in last we will replace x dash by x and y dash by y, है ना, क्योंकि ये वेरिएबल होगा, इसका लोकस निकालना है. तो ऐसे सारे पॉइंट पे यहाँ भी हो सके, यहाँ से भी आप दो टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ से भी दो टेंजेंट ड्रॉ करो, और बाद में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाती है, एंगल कितना होना पड़ेगा 60 डिग्री. तो ये जो पाथ ट्रेस करेगा ना, ये पॉइंट जिस पाथ से ये पास होगा वो उसका लोकस कहलाएगा, है ना. लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग द एलिप्स. तो क्वेश्चन में ये पार्ट है. तो बेसिकली जो आपने प्लस 2 वगैरह पढ़ा होगा, लोकस के लिए क्या कर, जिस पॉइंट का लोकस निकालना हो तो उसे एच के या एक्स डैश वाई डैश एज्यूम कर लेते हैं, और बाद में एच को एक्स से और के को किससे रिप्लेस कर देते हैं, वाई को. तो ये सब बेसिक आप लोग जानते हो, मुझे बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आइडिया दे दिया. अब आप ये देखो कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. तो सबसे पहले आप पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन होता है आपको एस एस डैश इक्वल टू टी स्क्वायर. तो इस कोनिक के लिए आप क्या काम करो, एक्स डैश वाई डैश से ये इक्वेशन लिख रखो. उसके बाद क्या करेंगे, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पहले क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास है, पहले हम वो सारे टर्म कंप्यूट कर ले. दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का क्या होता है, थीटा कितना होता है, tan इनवर्स 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी. अच्छा, ए और बी ये लिया है, तो इसको आप कैपिटल ए कैपिटल बी कर दो, ताकि नोटेशन में कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ए बी हमने इलिप्स के इक्वेशन यूज कर रखा है. एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में ये एंगल निकालने का फार्मूला होता है 10th, जहां पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx एंड सो ऑन. ठीक है ना. तो ये अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, सो द एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी. तो कैपिटल ए क्या होता है, कैपिटल ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कैपिटल बी इज कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एंड एच इज हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई. ठीक है. तो ये हमें करना होता है, ये अगर मालूम कर गया. In case if it represents a equilateral triangle, then you can replace this theta by 60 degree. So tan 60 कितना होता है, √3 पुट करने के बाद इसको हम इलिप्स निकालेंगे, I mean इसका लोकस निकाल लेंगे, x डैश y डैश को, लास्ट में x डैश y डैश को किससे रिप्लेस कर देंगे, x y से. तो ये प्रोसीजर है. तो अब आपको काम करो. So write equation of tangent from x dash y dash to conic x square by a square plus y square by b square minus 1 equal to 0 is. अब आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद करो, हम लोग वहाँ s इक्वल टू 0 बनाते थे कोनिक इक्वेशन. तो इक्वल टू, इसको सारे टर्म को एक तरफ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 0 कर दो. इज गिवन बाय ss1 इक्वल टू ss डैश इक्वल टू t स्क्वायर. नाउ हाउ टू राइट s इज द एक्सप्रेशन फॉर द कोनिक x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1. एस डैश के लिए आपको बताया था कि इस इक्वेशन में कंप्लीटली x को x डैश से और y को y डैश से रिप्लेस कर देते हैं. x डैश का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y डैश इट्स होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया. एंड हाउ टू राइट टेंजेंट के लिए क्या कर देते हैं, x स्क्वायर को x डैश y ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखते थे वाई वाई डैश बाई बी स्क्वायर माइनस 1, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि टी का क्या है, होल स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर. सो दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्स डैश वाई डैश टू दिस कोनिक. ठीक है ना. तो यहाँ तक ये हमने पहले एक्सप्रेशन लिख लिया, एंड यू कैन सी दैट इट इज ऑफ 2 डिग्री. देख लो यहाँ पे क्या लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिग्री है. ये एक्स डैश वाई डैश तो फिक्स है ना, इससे
दैट पॉइंट फिक्स है तो x डैश y डैश डिनोट्स फिक्स रियल नंबर, यहाँ फिक्स्ड पॉइंट है, वेरिएबल सिर्फ x और y है, तो इधर भी देखो 2 डिग्री का इक्वेशन, और जब आप यहाँ पे x x डैश का स्क्वायर करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, x का स्क्वायर अगेन इधर 2 डिग्री होगा, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हमने इक्वेशन लिख दिया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू द कोनिक दिस। अब ये बताओ कि ये अगर पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन है, सो ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, आई मीन कोफिशिएंट, क्योंकि एंगल जो होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स h स्क्वायर माइनस ab, तो उसमें मुझे x स्क्वायर कोफिशिएंट चाहिए, y स्क्वायर कोफिशिएंट चाहिए और x y कोफिशिएंट की जरूरत होती है। तो उसके लिए आपको यहाँ से कंप्यूट करना पड़ेगा सारे टर्म्स। तो टर्म्स कैसे कंप्यूट करेंगे, तो देखो टर्म्स कंप्यूट करने के लिए पहले आप क्या काम करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। पहले आपको x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा, so the coefficient of x square, that is basically a, so let me write that coefficient of x square, x स्क्वायर कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, देखो जब x स्क्वायर बाई a स्क्वायर को इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो वहां से कोफिशिएंट आएगा, तो मुझे लिखने दो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचा, x डैश होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y डैश होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 1, एक तो ये आ गया, ठीक है ना। और राइट साइड से जब आप इस टर्म को स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर x डैश स्क्वायर बाई a रेज़ टू द पावर 4, तो a स्क्वायर कॉमन, इसको लेफ्ट में लाओगे तो माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ x डैश स्क्वायर बाई a स्क्वायर होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने x स्क्वायर बाई स्क्वायर बाहर ले लिया तो ये आया होगा टर्म, ठीक है ना। अब ये टर्म देखो कैंसिल कर गया, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये हुआ 1 बाई a स्क्वायर, बेसिकली एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देख रहे थे, एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हमें कांस्टेंट टर्म देखना है, आई मीन कोफिशिएंट देखना है, तो ये वाला टर्म जो हो गया ये उसका कोफिशिएंट हो गया। सो आई कैन से दैट कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर इज 1 बाई a स्क्वायर y डैश होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, सर हाँ ये x डैश अपॉन a, x डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे नहीं है? क्या कहना है आपका, फिर से बताएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये x डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर जो है हाँ, वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा है? कहाँ पे नहीं किया मैंने, ये जो है सर, ये जो है टर्म में आप किस टर्म की बात करें बताएं। अ, आपने जो लिखा है ना द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हाँ हाँ, हाँ, तो उसमें जो लिखा है आपने x डैश स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, हम्म, तो हाँ, तो इसको सर मतलब कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा है? नहीं कर लिया मैंने, सबको कर दिया। देखो ऐसा है ना कि आप एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करोगे, है ना, तो ये पूरा उसका कोफिशिएंट हो जाएगा ना, हाँ ए स्क्वायर इनटू दिस, और तो इधर और हाँ टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट तो आएगा नहीं, राइट साइड से आएगा, जब हाँ इसका स्क्वायर करोगे, जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर एक्स डैश का स्क्वायर अपॉन ए रेज़ टू द पावर 4, ये आएगा। हाँ ए प्लस बी, मान लो इसको, इस पूरे टर्म को आप बी मान लो और इस पूरे टर्म को ए मान लो, तो ए प्लस बी का जब हाँ स्क्वायर करोगे तो पहला टर्म ए स्क्वायर होगा। हाँ अब आप यहाँ से इसको लेफ्ट में ले आओ, तो लेफ्ट में लाओगे तो आप हाँ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओके सर, कॉमन ओके ले ओके रखा ओके है ना, कॉमन, तो ओके सर, एक्स डैश स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मैंने इस तरह लिख दिया है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा कोई डाउट है पूछ लिया करें, सही। उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर निकाल लेंगे, तो वाई स्क्वायर तो पहले कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर निकालने के लिए, हालांकि मैंने यहाँ कोफिशिएंट वर्ड लिख दिया तो एक्स स्क्वायर यहाँ नहीं लिखना चाहिए, तो वो फाइनल यहाँ लिखा है, ठीक है, वो समझाने के लिए आपके बीच में कैलकुलेशन किया है। तो उसमें उसी तरह इसका सेकंड टर्म लिख लो, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का जब मैं वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का इस पूरे टर्म मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये बेसिकली बेहतर होता है x1 y1 यूज करने को, वरना कभी कभी ना ये 12 लगने लगता है। ये आप क्लियर में कह दूं, एक्स डैश का स्क्वायर है ना, एक्स डैश का होल स्क्वायर है ये, इसीलिए हम लोग अक्सर नोटेशन में x1 y1 यूज करते हैं, लेकिन अब बुक में नोटेशन दिया तो मैंने वही लेकर चल दिया, चलो खैर वो कोई -1 ये हो गया जब इस पूरे ब्रैकेट मल्टीप्लाई, और राइट साइड से कब आएगा, जब आप इस टर्म का स्क्वायर एक्सपेंड करोगे, तो वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर बाई बी रेज़ टू द पावर 4, तो देखो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर तो ऑलरेडी कॉमन है, तो माइनस कितना आ जाएगा, वाई डैश होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर,
ये आ गया। तो ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, तो आप कह सकते हो कोफिशिएंट जो होगा, वो इतना होगा 1/b² दिस टर्म, है ना। सो आई कैन राइट इट एज 1/b² x डैश होल स्क्वायर बाई a² -1। ये आ गया, ये x² कोफिशिएंट ये हो गया और y² कोफिशिएंट ये हो गया। अब मुझे एक और टर्म चाहिए xy कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट ऑफ xy, क्योंकि फार्मूले में ये जो फार्मूला हम यूज करते हैं ना, tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2√h² - ab अपॉन a प्लस b। तो इसमें मुझे सिर्फ 3 चीज़ों की जरूरत होती है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y², हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ h। ये 3 चीज़ मालूम है तो एंगल आप कंप्यूट कर सकते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ xy कितना होगा, देखो इधर तो कोई टर्म है नहीं, इसका अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करो तो xy कहीं नहीं आएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करो तो x, क्योंकि x डैश y डैश तो फिक्स पॉइंट है ना, xy कोफिशिएंट चाहिए। लेकिन राइट साइड में जब ये a है और ये b है, तो जब 2ab आएगा ना, a² + b², जब 2ab आएगा तो उसमें आएगा 2 टाइम्स x डैश बाई a² इंटू y डैश बाई b²। तो यहाँ से जो टर्म आएगा, पहले टर्म में लिख दो, उसके बाद कॉमन लेते हैं। सो तो xy कोफिशिएंट जो 2 है, हाफ ऑफ 2xy, कैसे आएगा, 2x का y मल्टीप्लाई 2xy और x डैश y डैश so you can call coefficient of xy in this 2xy x dash y dash upon a² into b² is कितना हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये लेफ्ट में आएगा, जब आप एक्सप्रेशन इधर ला कंपेयर करो तो माइनस साइन भी आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। सो दिस इज माइनस टाइम्स x डैश y डैश, क्योंकि आपको xy कोफिशिएंट लेना, 2 कट जाएगा तो माइनस x डैश y डैश अपॉन a² b²। ये आ गया। यहाँ पे भी लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस एक्सप्रेशन इज दिस कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इस फार्मूले में आप रख दो, ये h की वैल्यू हो गई, ये बेसिकली आपका कैपिटल H आ गया, ये आपका A आ गया कैपिटल A, और ये हो गया कैपिटल B। अब कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल H को सिर्फ इस एक्सप्रेशन में आप रख दो, तो ये आपका ये एंगल कंप्यूट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया टर्म। इस टर्म को यहाँ रख देंगे, तो चलो मैं अलग से लिख देता हूँ। सो द एंगल बिटवीन टेंजेंट इज देयरफॉर tan इनवर्स और 2√h² की वैल्यू आप पुट करो इसमें। h² की वैल्यू कितना था, x डैश होल स्क्वायर y डैश होल स्क्वायर बाई a⁴ b⁴, कैलकुलेशन चेक करते रहेंगे, माइनस h² माइनस ab, a कोफिशिएंट ऑफ x² था तो वो कितना आया था 1, बल्कि आप अगर पीछे देखो तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a और b को, तो 1/a² 1/b², और ये दोनों टर्म प्रोडक्ट आएगा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 कंबाइंड लिख देता हूँ, 1/a² इंटू b² और दोनों ब्रैकेट लिख दो, y डैश का होल स्क्वायर बाई b² -1 इंटू x डैश का होल स्क्वायर बाई a² -1। ये ठीक है ना, ये हो गया न्यूमरेटर आपका 2 ये h² माइनस ab अपॉन a प्लस b, a और b को ऐड कर दो, ये कितना आया था 1/a² y डैश स्क्वायर बाई b² -1 इंटू प्लस 1/b², और आप चाहे तो यहाँ से ये हटा दो, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं ब्रैकेट, 1/b² और सेकंड ब्रैकेट के अंदर आप लिख दो कितना आया था 1/b² x डैश स्क्वायर बाई -1, हाँ x डैश होल स्क्वायर बाई a² -1, ये टर्म हो गया। सो दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड एंगल इज, ये x डैश y डैश रियल नंबर, तो ये वो रिक्वायर्ड एंगल है जो आपको चाहिए था।
सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का आप देखो, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है. First part is the find the angle between the pair of tangents, so that part we have done. Second part, hence find the locus of the vertices of equilateral triangle circumscribing the ellipse. तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा तो एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और बाद में लोकस के लिए एक्स वाई को किससे, एक्स डैश वाई डैश को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स वाई से. इसी इक्वेशन में अब आप क्या काम करें, यहाँ थीटा को जब 60 डिग्री रखोगे तो tan 60 कितना हो जाएगा √3. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो if the tangent forms sides of an equilateral triangle the angle between them is 60 degree. एक मिनट जरा होल्ड करें थे, कॉल इंपॉर्टेंट कॉल. ठीक. So if the tangent forms sides of an equilateral triangle, the angle between them is 60 degree. So just write here, replace this tan theta. यहाँ पे क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा tan थीटा 60 डिग्री, तो √3 यहाँ पुट कर दो, √3 यहाँ पे आप कितना पुट कर दोगे, √3 tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3. ठीक है, तो √3 इज इक्वल टू ये हो गया, √3 इज इक्वल टू, और इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो बेसिकली √3 इज इक्वल टू ये हो गया tan इनवर्स, सॉरी 2 टाइम्स, बल्कि आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस टर्म का, तो √3 इंटू क्या हो गया 1/a² और y डैश स्क्वायर बाई b स्क्वायर. क्योंकि फॉर्मेट नहीं दे रखा है, जैसे होता है ना क्वेश्चन प्रूफ करना होता है, शो दैट लोकस विल बी दिस एक्सप्रेशन, तब आपको उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना होता है. तो यहाँ पे आप इतने पे भी छोड़ सकते हो, 1/b स्क्वायर x डैश होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर -1 एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 रूट, और ये पूरा एक्सप्रेशन आप लिखते हैं x डैश स्क्वायर y डैश होल स्क्वायर बाई a रेज़ टू द पावर 4 b रेज़ टू द पावर 4 -1/a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ y डैश होल स्क्वायर बाई b स्क्वायर -1 इंटू x डैश होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर -1. ठीक है ना, ये हो गया. अब दूसरे पार्ट में क्या पता है, लोकस
फॉर लोकस ऑफ द पॉइंट P x डैश y डैश आप लिखोगे रिप्लेस x dash by x and y dash by y in this expression. तो या आंसर कितना होगा √3 और 1 by a square y square by b square minus 1 plus 1 by b square x dash whole square by a square minus 1 सॉरी डैश नहीं लिखेंगे x हो जाएगा is equal to 2 root this expression x square y square by a raised to the power 4 b raised to the power 4 minus 1 by a square b square y square by b square minus 1 into x square by a square minus 1. अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती अनलेस ये अगर आपको दिया है ना क्वेश्चन में कि आपको एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिखाना है तभी सिंप्लीफाई करते हैं वरना इसको जरूरत नहीं होती. हालांकि इसको आप सिंप्लीफाई करोगे क्योंकि मेरे पास कंप्यूटेड रिजल्ट है तो मैं लिख देता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये एक्चुअल में सॉल्व एग्जाम्पल है जो मैंने एक्सप्लेन किया ना ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल आपके बुक का. तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आया है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वो आप खुद से अगर चाहो तो आप खुद से सिंप्लीफाई कर लेना. सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एक्सप्रेशन में ऐसा कहीं लिखा नहीं कि आपको पर्टिकुलर यही एक्सप्रेशन दिखाना आंसर यहाँ तक सफिशिएंट है. सो टर्म जब एक्सपेंड कर टर्म कैंसिल करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई दोनों साइड स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करना तो ये आएगा. ठीक है ना ये लोकस है ठीक है. आई मीन इस कर्व पे अगर पॉइंट पी लाई कर रहा है तो वहां से जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स तो वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स बनेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स बनेंगे. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन था हमने ये पार्ट कंप्लीट कर दिया. लोकस ऑफ द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल सब्सक्राइबिंग द एलिप्स. नेक्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन 2. मैं क्वेश्चन 2 लिख देता हूं और इसको आप लोग पहले ट्राई करें फिर डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 72. क्वेश्चन इज अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द कोनिक ax square plus by square is equal to 1 intercept a constant to c on the axis of y prove that the locus their point of intersection is the curve ax square times ax square plus by square minus 1 is equal to b into c square into ax square minus 1 its whole square. अब देखो जैसे इस एक्सप्रेशन में आपको ये दे रखा है कि आपको शो करना है कि लोकस ये कर्व होगा तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में सिंप्लीफाई करके लाना होता. जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा था तो आप वहां तक भी यहाँ तक भी आंसर छोड़ दोगे तब भी सही है. इस एक्सप्रेशन तक भी आपका आंसर सही है. ठीक है ना. तो ये चीज है. तो आप पहले इस क्वेश्चन को करें खुद से ट्राई उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ. सर हाँ बताएं. सर ये क्वेश्चन में जो है ax स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर दिया हुआ है. हाँ नहीं वो प्रिंटिंग मिस्टेक है करेक्शन कर लें प्लस बी वाई स्क्वायर वरना कर दूसरा आएगा ये नहीं होगा. ये प्लस वाला ही होगा इसमें. हाँ प्लस वाला होगा. ओके सर. असल में बुक ओल्ड एडिशन है ना तो उसमें माइनस प्रिंटेड है गलत है प्लस होगा यहाँ. यस सर.
देखो पहले मुझे क्वेश्चन आप एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ. See, this one is the standard equation of ellipse. स्टैंडर्ड तो नहीं कहेंगे, बट एक्चुअली स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो 1 बाई ए स्क्वायर को अगर आप से ए डैश से और 1 बाई बी स्क्वायर को बी से रिप्लेस कर दो, देखो वही इक्वेशन है ना. तो ये एलिप्स का है. बेसिकली आपको कोनिक याद रखा है एलिप्स. सो लेट मी ड्रॉ एन एलिप्स और इसको पार्शियल डेरिवेटिव करके इसका जीरो पुट करो, सेंटर 0 0 आएगा. ठीक है. तो ये सपोज क्या कोई एलिप्स है. क्वेश्चन क्या कहता है, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द कोनिक दिस. किसी पॉइंट से आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो. सपोज क्या कोई पॉइंट है, यहां से मैं पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं. ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द फिर से बनाता हूं. A pair of tangent to the conic intercept a constant distance 2c on the axis of y. तो मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है. ठीक है. किसी पॉइंट से हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं. ये ड्रॉ किया. तो देखो एक तो ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेप्ट y एक्सिस पे. y एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट हुआ और यहाँ ये इंटरसेप्ट हुआ. तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका डिस्टेंस 2c है. एक मिनट कॉल है. ठीक. तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द कोनिक दिस इंटरसेप्ट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 2c ऑन द एक्सिस ऑफ y. प्रूव दैट द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. सपोज किया कि जो पॉइंट है जहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ उसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लो. x डैश y डैश आप अवॉइड करो क्योंकि वो क्या है ना, स्क्वायर करने में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है. सो x1 y1 ये 2. तो वहां से जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो एक फिक्स्ड कांस्टेंट डिस्टेंस 2c. तो मान लो देखो जैसे ऐसा करो कि ये जो पॉइंट है, क्योंकि y एक्सिस पे इसको आप मान सकते हो 0 y1 और इस वाले को आप मान सकते हो 0 y2 है ना, 0 y2. तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो फिक्स डिस्टेंस है बेसिकली मॉड ऑफ y1 माइनस y2 होगा. ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है, मतलब ये हो सकता है नीचे हो, ये पॉइंट ऊपर, से मैंने मॉड लगा दिया 2c. मॉड y1 माइनस y2 इक्वल टू 2c हो गया. तो ऐसे सारे पॉइंट से ऐसे वो सारे पॉइंट्स का लोकस निकालना है जहां से कि आप जब भी इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो ना, पेयर ऑफ टेंजेंट, तो ये फिक्स डिस्टेंस कांस्टेंट 2c इंटरसेप्ट करे y एक्सिस पे. तो दूसरा हो सकता है वो पॉइंट कहीं यहाँ हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉइंट कहीं यहाँ हो. इसमें किसी और कलर से बना दूं ताकि आपको डाउट हो. तो सर y1 तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट में भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है. y1 पॉइंट, अच्छा हाँ, ये नोटेशन कुछ अलग ले लो. अच्छा x1 y1 ऑलरेडी मैंने ले रखा है. आप फिर इसको कम कर दो x डैश y डैश. ठीक है ना, इसको x डैश y डैश कर दो. तो यहाँ ये कट कर इसके कोऑर्डिनेट्स को आप 0 y1 0 y2 कह दो. तो मॉड ऑफ y1 माइनस y2 एज पर क्वेश्चन 2c है ना. कांस्टेंट डिस्टेंस 2c ऑन द एक्सिस ऑफ y. इंटरसेप्ट कितना है 2c. अब अगर कोई दूसरा पॉइंट है तो मान लो ये कहीं यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, फिर यहाँ से कुछ ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये जो डिस्टेंस है ये दोबारा फिर क्या होना चाहिए, 2c होना चाहिए. तो अब ये जो भी कर्व होगा जिस पे ये पॉइंट लाई करेगा है ना, वो शो करना, उस कर्व का इक्वेशन ये होगा. पहले क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, क्लियर हुआ? लोकस का क्या यहाँ मतलब है, आई मीन सपोज किया कि ये कर्व ये है, सपोज ये कर्व है, इस पे आप कोई भी पॉइंट लेके जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये फिक्स्ड कांस्टेंट 2c ही इंटरसेप्ट करे. यहाँ पे लिया
वैसे सारे पॉइंट का लोकस निकालना। तो आप मान लो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश है, पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन लिख दो इस कोनिक पे। अब बाद में क्या काम करो, लोकस के लिए x डैश y डैश को किससे रिप्लेस कर देंगे, x y से। तो चले अब मैंने हिंट दे दिया, अब आप प्रोसीड करें तो फिर मैं बताता हूँ। x डैश y डैश ले लो, चाहे कुछ अलग ले लो, अल्फा बीटा मान लो, बाद में इसको अल्फा को x से और बीटा को y से रिप्लेस कर देना। आपको जो भी नोटेशन लेना हो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं एल्गो बता देता हूँ, पहले आप पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन लिखो अल्फा बीटा से इस कोनिक पे, ठीक है ना। तो वो इक्वेशन क्या होगा, एस एस डैश इक्वल टू टी स्क्वायर, ये आप जानते हो कैसे लिखना है। ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद ये किसको मीट कर रहा है, वाई एक्सिस को मीट कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे क्या जीरो होता है, एक्स इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन में क्या पुट कर दोगे आप, एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इन वाई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इन वाई। तो क्वाड्रेटिक इन वाई को इक्वेशन उसके दो रूट्स होंगे एटमोस्ट, से y1 y2, मान लो उसके रूट्स हैं y1 और y2। तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट निकाल लो, y1 प्लस y2 निकाल लो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो y1 y2, है ना। आप पढ़े हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट ऑलरेडी आपको मालूम है, y1 माइनस y2 ये दे रखा है 2c, ये आपको दे रखा है मॉड ऑफ y1 माइनस y2 किसके बराबर 2c। और आप जानते क्या हो कि डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो आपको y1 माइनस y2 स्क्वायर कितना दे रखा है 2c, तो 2c का होल स्क्वायर y1 प्लस y2 यहां से आ जाएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से, और y1 y2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी यहां से आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट कर दो। बाद में लोकस के लिए अल्फा बीटा को किससे रिप्लेस कर दो, अल्फा को x से और बीटा को y से। तो अब क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है, मैंने हिंट दे दिया, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन, मैंने हिंट दे दिया, लेकिन पहले आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे उसके बाद। तो आप लोग इसको ट्राई करें फिर। ठीक है, मैं क्लास यही एंड करता हूँ, और आप लोग इसको ट्राई करके चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल भी सकते हैं, लेकिन उसमें डिस्टर्बेंस होने लगता है, तो बहुत से लोग उसमें और भी जुड़े होते हैं। तो आप लोग पर्सनली मुझे भेज देंगे, ठीक है। जिन्होंने सॉल्व कर लिया मुझे भेज देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। डायग्राम मैंने बता दिया, ठीक है, ओके।